60 फुट रोड पे ये वाकया होता है, इसमें फायरिंग बड़ी शदीद हो रही थी। 40-50 बंदे कोई दो आ गए कोई दो आ गए। चाय और पराठे पे जो है ना इनकी बहस होती है। उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि आपने हमसे जुर्रत कैसे की पैसे मांगने की। आते साथ सबसे पहले उन्होंने वाई फायरिंग शुरू की है। ये केस जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे। 2 रोज गुजर चुके हैं कि एक शख्स हमारे एसएचओ साहब वहां पे गिरफ्तार नहीं कर सके। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारी नज़रों से वीडियो गुजरी एक, हमने उसको देखा बड़े गौर से। उसमें फायरिंग बड़ी शदीद हो रही थी। फिर हमने सोर्सेज से पता किया कि ये वाकया क्या लाहौर का है। हमें कन्फर्म हुआ तो हम उनके पास पहुंचे जिन पे ये फायरिंग हुई। इस केस के मुद्दई भी मौजूद है, मोहम्मद मनीर। चाय का स्टॉल लगाते हैं। 60 फुट रोड पे ये वाकया होता है। फायरिंग, डंडे सोटे, एक साइड पे बाप बेटे और एक साइड पे साजा माजा ताजा और लफंडर पार्टी जो कि इनके ऊपर आके हमला करते हैं और सिर्फ चाय और पराठे पे जो है ना इनकी बहस होती है। लेकिन इतनी जो लड़ाई इख्तियार कर गई शिद्दत, उसके पीछे कोई बात तो ज़रूर होगी। असल वजह की ये लड़ाई दी वजह कोई भी नहीं, पीछे कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। पहले ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾय ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸਨ 2005 ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਨ 2010 ਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸਟੋਰ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪਰੌਠੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਖਾਦੇ ਨੇ, ਪੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਗਿਆ ਬਰਤਨ ਚੱਕਣ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਹੱਥੀ ਬੱਕੀ ਪੈ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਖੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੇਟੇ ਸੀ? 3 ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਹੋਰ? ਸੀ, 3 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ 40-50 ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ 40-50 ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਨੇ। ਐਦੂ ਆਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾय ਜਾਂ ਪਰਾਠਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 40-50 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰੇ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਜੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 4-5 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ 2 ਡਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰੇ। ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ, ਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ, ਵਨ ਫਾਇਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਨ ਫਾਇਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਸਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿਰ ਸਾਡੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇਹ ਡੰਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੈਰ ਦਾ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ। ठीक है। मेडिकल 15 से कॉल किने की थी? 15 पे कॉल किया। 15 पे आपने कॉल जी। पुलिस का क्या रिस्पांस था? चंद कदम पे ही आया था ना, तो 15-20 मिनट लग गए थे उनको आने में। ठीक है। तब तक ये मार मूर के चले गए थे सारे। हम बाहर निकले हैं, लोगों ने कहा कि वो चले गए हैं, आप बाहर निकलो। बाहर निकले हैं, उसके बाद तकरीबन को 5-6 मिनट के बाद वो आए हैं, पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने मौका वारदात देखी है, वीडियो वगैरह बनाई है। तो फिर वो साथ चले गए, या वो हमारे साथ थाने गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। फिर हम चले गए मेडिकल करवाने। वहाँ से हम रात को 2 बजे वापस आए हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने सुबह गए हैं। उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट जो है आप अपने पास रखो, हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, मुझे ये बताएं कि पुलिस तो आ गई मौके पे, सारी चीज़ें होगी जी।
आप लोगों ने वहाँ से जो है पुलिस को सारी चीज़ें बता दी हैं जी। ये लोग वहीं के रिहायशी हैं या कोई वहीं के साइड के रिहायशी। कहीं से आए हैं? इधर के रिहायशी हैं, तकरीबन 5 से 10 लड़के जो हैं उधर के रिहायशी हैं जिनसे हमारी मेन लड़ाई है। इन्होंने फिर आगे फ़ोन करके अपने कुछ दोस्त वगैरह बुलवाए हैं, अचानक आए हैं। तकरीबन 40-50 लड़का, एक बाइक पे 3-3 लड़के बैठे हुए थे। आते साथ सबसे पहले उन्होंने वाई फायरिंग शुरू की है, 2-3 बंदों ने की है। फिर उसके बाद उन्होंने बोतलें चलानी शुरू कर दी हैं। 1-2 बंदों को हमने भी मारा है, जितनी हमारी थी पहुंच उस वक्त हमने भी मारा है। हाँ, फिर अपनी जान बचाने के लिए ज़ाहिर सी बात है इतना कुछ तो करना पड़ता। हाँ, तो बोतलें मारी हैं, पाँव में लग गई थी बोतलें, कांच वगैरह। फिर डंडे वगैरह दूर से मारते रहे, इंटें मारते रहे। हम अंदर गए हैं, बाहर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। FIR 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ। 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਲੂਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਨ ਸੁਣਾਏ ਨਾਮ ਲੋਕ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ? दानिश है, दानिश वालिद ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿਰ ਬਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ, ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ? 5 ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, अपने तो शुरू होते हैं अगले तो पहुंच जाएंगे। आप लोगों के जो लोग हैं सारे वो सेफ हैं, ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ ठीक है सर माशाल्लाह। फटे हुए टांगे टूंगे लगे हुए, फिलहाल तो सेफ हैं। इसको मुतलका थाना लगता है शेरा कोट। इनके लीगल एडवाइज़र रहील डार साहब भी मौजूद हैं। FIR मैंने देखी है वहाँ पे 506B 148 149 नॉर्मल, 506B की तो ज़मानत ही नहीं है, लेकिन फायरिंग और इतनी शदीद फायरिंग और हमला 780 नहीं लगती इस पे? बेहतर यही जानते हैं और इस पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ये केस अभी सारा रीड किया होगा, बिंगा लॉयर, ये केस जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे, जो दफात लगाई गई हैं और जो इनके साथ हुआ है। FIR में जो चीज़ें हैं वो दफात का ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें। भट्ट साहब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी? जी जी। ये एक सादा तबीयत लोग हैं, कारोबारी शख्सियत है, काम कर रहे हैं, रिज़्क रोटी कमा रहे हैं, मज़दूर तबका है ये। कोई बहुत बड़ा इनका लग्जरी होटल नहीं वहाँ पे, एक ढाबा सा चाय पराठे का अपना ज़िंदगी का रोज़मर्रा के जो मामला था उसको गुजर बसर करने के लिए। साथ बेटे भी काम कर रहे हैं? सारी फैमिली जी, बेटे एंगेज है, खुद हैं, कोई रिश्तेदार कज़न्स वगैरह भी एंगेज हैं, और ठीक है, मेहनत कश लोग हैं, अच्छा है, हक हलाल कर रहे हैं, अच्छी मजदूरी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। ये जो सारा मामला हुआ है ना, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि FIR के बारे में आप क्या कहते हैं, ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर ये कोई ज़ाती वजह अनाद होती ना, कोई लेन देन का तनाज़ा होता, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता, तो मैं समझता कि ये FIR ठीक है कि 506B अमूमन लगा देते हैं, है ये नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लगाते हैं। 147 148 क्योंकि ज़ाहिर है वो 12 से 14 अफराद मसला असले के साथ और डंडे के साथ वो लोग वहाँ पहुँचे थे, लगाते हैं। लेकिन ये कॉमन ग्राउंड से कोई ज़ाती वजह अनाद हो, यहाँ पर वजह अनाद नहीं है। जो यहाँ पर पॉइंट सुनने और समझने वाला है सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, वो ये है कि ये जो जत्था, ये जो ग्रुप, ये जो गुंडा नासर, इनके ऊपर हमलावर हुए हैं, उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि आपने हमसे जुर्रत कैसे की पैसे मांगने की। ये एक बाज़ार है जहाँ पे इनका भट्ट साहब होटल है ना, ये बाकायदा एक गुंजान बाज़ार है, 60 फुट रोड है। ये जो माफिया है यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही वो ये है कि ये लोग अपना वहाँ पे ना दबदबा कायम करना चाह रहे हैं। बड़ा मशहूर बाज़ार है 60 फुट रोड, ये वहाँ पे ना अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक छोटे से मामले पे, जाहिर है यार उसने अगर आपने वहाँ से उसकी कोई चीज़ कंज्यूम की है, कुछ खाया है, चाय पराठा जो भी है, तो भाई उसको उसकी उजरत पैसे दो ना। क्या उसने कोई गलत मुतालबा किया? आपने सिर्फ उसके पैसे मांगने के ऊपर उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं, सीधी फायरिंग कर दी है, और ये फायरिंग भरे बाजार में की है। मैं आपसे यहाँ पे आपने जिक्र किया 780 दहशत गर्दी की जो दफात है डेफिनेटली अट्रैक्ट होती है, यहाँ नहीं होती फिर और कहाँ होती हैं?
सेक्शन जो 780A है, जो अमूमन लोग समझते हैं, इससे पहले एक एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 आता है। मैं 2 लाइनों में आपको ये बट साहब बताऊंगा, आप और ये अवाम नाज़रीन जो सुन रही है खुद ही फैसला कर लेगी कि यहाँ पे 780 अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती है। जो सेक्शन 6 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स किसी इलाके में ऐसा एक्ट करे जिसकी वजह से वहाँ पे खौफो हरास पैदा हो जाए लोगों में, अवाम में, और उसकी दहशत और दबदबा कायम हो जाए, तो वहाँ पे 780A की अट्रैक्शन हो जाती है। इस वाक़ये के अंदर अगर तो वजह ना ज़ाती होती ना, कोई लेन देन का मामला है, समझ आती है 506B, 147, 148, ओके समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़ाती वजह ही कोई नहीं है। वो तो कारोबारी शख्स है, वो इतना मासूम है, वो कहता क्या है, आप उसे भी पूछें कि आप क्या चाहते हो, वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा हाथ तोड़ा इसका भी हाथ तोड़ो, वो ये तो कह ही नहीं रहा। वो कह रहा है मैं सिर्फ अमन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमें अमन अमान से वहाँ पे काम करने दें, अपने बच्चों का रोज़गार रिज़्क इकट्ठा करने दें। तो वो सर इसके साथ तो ज़्यादती हो गई, वो सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। मेरा यहाँ पे मुतालबा सिर्फ इतना है कि ठीक है, एक SHO की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क तब तक नहीं आता जब तक कोई जुर्म सरजर्द हो, क्योंकि ज़ाहिर हम रोक तो नहीं सकते किसकी क्या इंटेंशन है, लेकिन अगर एक जुर्म हो गया है, वो भी इतना वायरल जुर्म, कोई एक शख्स नहीं है बट साहब, वहाँ पे 15-20 अफराद डंडे सोटे फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग नजर आ रहे हैं। यार एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ, 2 रोज गुजर चुके हैं कि एक शख्स हमारे SHO साहब वहाँ पे गिरफ्तार नहीं कर सके। यहाँ पे कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क आता है। दफात 780A की अट्रैक्ट होती हैं, आपने कॉमन 147, 148 लगा के इस मामले को क्या सुलह की तरफ लेके जाना है। अमूमन तरीका वारदात ऐसे ग्रुप माफिया का सिर्फ ये होता है कि मैटर को प्रोलॉन्ग करते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग करते हैं तो इस तरह के ज़ाहिर उसने कारोबार करना, उसने कहाँ जाना है, इन्होंने लड़ना झगड़ना थोड़ी है। जैसे ही मामला प्रोलॉन्ग होगा वो इसकी तरफ सुलह का दबाव डालना शुरू कर देंगे, आखिर तंग आकर ये भी हाथ खड़े करेगा कि ठीक है जी मैंने माफ़ किया। लेकिन जब स्टेट एंगेज हो जाएगी, दहशतगर्दी के दफात ऐड हो जाएंगी, तो फिर ये माफ़ करे ना करे वो मैटर साइड पे है। जो मजाक उड़ाया गया कानून का वहाँ पे, उसका जवाब सबसे पहले उसने देना है। तो गुजारिश ये है कि मेरे मुताबिक एज अ लॉ स्टूडेंट ये दफात में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थी, इसमें मजीद दफात ऐड करनी चाहिए, आज़ाद करनी चाहिए। अब इनको चोटें लगी हुई हैं, इनका सर फटा हुआ है, इनकी हाथ की हड्डी टूट गई, MLC करवा ली। अब यकीनन इसके ऊपर वो जो 337 F5 अट्रैक्ट होती है वो आज़ाद होगी। लेकिन मुतालबा ये कि 780 का जो ऑफेंस है वो अगर यहाँ अट्रैक्ट नहीं होता तो फिर कहाँ पे होना है। आप पे अभी तक किसी का प्रेशर है उनकी तरफ से कि यार FIR वापस लो, कोई सुलह की तरफ मामला लेके जाना है, कोई प्रेशर या कोई दबाव? नहीं हाले कोई साढ़े को प्रैशर नहीं आया, साढ़े को किसी ने गल इस मामले चाली किसी भी नहीं की ये प्रेस या सुलह कर लो या तुम अमन कर जाओ बह जाओ दो किसी बंदे ने हाली ये मामला कोई नहीं किया कराया साढ़े नाल। ठीक है, असं ये चाहने भी बाजार च अमन सुकून होना चाहिए, क्यों सारे दुकानदार जोड़े ने सारे डरते पे इस गल तो, कोई बंदा हथ नहीं लाता। इतना हाई प्रोफाइल केस ये इस टाइम बन चुका है कि वीडियोज़ आ रही हैं और फायरिंग हो रही है, लोग ढूंढ रहे हैं कि यार ये कहाँ की वीडियो कहाँ की है। कुछ कह रहे हैं जी पुरानी वीडियो है, पिछले साल दी है, लेकिन नहीं, ये इसी साल की है और 2 दिन पहले की वीडियो है। अपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।